Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 9th biology. Chapter 3 Biodiversity. Okay students, in today's lecture we will study the binomial nomenclature. Then we will discuss its rules and significance. Then we will study the conservation of biodiversity. Then at the end we will discuss the impact of human beings on biodiversity. Okay students, now we will discuss the binomial nomenclature in detail. So students, what is binomial nomenclature? Basically, binomial nomenclature is the method of giving scientific names to the living organisms. अब students, ये जो हम scientific name देते हैं living organisms को, इसको हम binomial nomenclature कहते हैं. Basically, अभी जो scientific name देना है living organism को, ये important होता है ताकि पूरी world में organisms जो हैं just single name से recognize किए जाएं. So as the word binomial suggest, अगर आप word binomial का meaning देखें तो bi mean two and nomial mean names. So the scientific name of a species consists of two names. अभी जो scientific name होती है species का, इसमें क्या होता है, इसके two names होते हैं. So the first is genus name. अब scientific name में two names है. First name को हम genus कहते हैं और जो second one name होता है उसको क्या कहते हैं, species कहते हैं. So Swedish biologist Carolus Linnaeus first introduced and adopted the system of binomial nomenclature. सबसे पहले आपका Carolus Linnaeus ने ये system introduce करवाया था. Then his system spread rapidly and became popular and many of his names are in use today. अब इस system के according जितने भी हमने names अब scientific names देते हैं animals को या organisms को हम scientific name देते हैं, वो इस system के according देते हैं. So rules क्या हैं? अब हमने rules discuss करने हैं binomial nomenclature के. So students, some of the rules which are universally adopted while suggesting and documenting scientific names are. अब हमने देखने हैं कि scientific name लिखने के क्या method हैं. So students, अब वो first rule हमने discuss करना है, like scientific names are usually printed in italics. Basically scientific name को आप italics में print करते हो, slanted writing जो होती है उसमें print करते हो. Just such as Homo sapiens. अब ये Homo sapiens है, ये italics में लिखा हुआ है. So when handwritten they are underlined. बट अगर आप उसको खुद से लिख रहे हो, खुद से राइट कर रहे हो, तो देन उसके नीचे आप क्या करते हो, उसको अंडरलाइन करते हो. सो ये फर्स्ट रूल है. सेकंड रूल क्या है? द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. अब जो हमारा फर्स्ट नेम है, जीनस है, साइंटिफिक नेम में जो जीनस नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. एज यू कैन सी इन होमो सेपियंस. अब ये होमो सेपियंस जो है ये ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है. अब इसमें होमो जो है ये जीनस है और सेपियंस क्या है, स्पीशीज है. अब होमो में जो ये फर्स्ट लेटर है एच, इसको कैपिटल लिखते हैं. वाइल स्पीशीज नेम is never capitalized even when derived from a proper name. अब ये जो species word है like sapiens, ये species है name और इसका जो first letter होता है ये capital नहीं लिखते. So ये second rule हो गया. Third rule क्या है? The scientific name is generally written in full when it is first used. Basically scientific name को आप क्या करते हो, full form में लिखते हो जब आप उसको first time use कर रहे हो. But when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just adding an initial for genus. For example, Escherichia coli becomes E. coli. But in case कि अगर आपके बहुत सी species just एक genus से belong कर रही हैं, तो then आप just जो है genus का क्या use करोगे, उसकी abbreviation use करोगे. Like for example, Escherichia coli becomes E. coli. अब Escherichia जो है इसमें genus है, ये bacterium का name है, साइंटिफिक नेम. Escherichia जीनस है एंड कोलाई क्या है, स्पीशीज है. अगर बहुत सी स्पीशीज जस्ट Escherichia से बिलोंग कर रही हैं, एक जीनस से बिलोंग कर रही है, तो देन Escherichia कोलाई क्या बन जाएगा, ई कोलाई बन जाएगा. सो स्टूडेंट्स, ये रूल्स से बायनोमियल नोमेनक्लेचर के. Now students, we will discuss the significance of binomial nomenclature के binomial nomenclature की क्या importance है वो हमने discuss करनी है. So students, basically in biological research common names causes many problems. So ये जो common name होते हैं ये क्या करते हैं, problem cause करते हैं. Like different regions have different names for the same organism. For example, अब एक organism है उसमें different regions जो है world के, उसमें उस organism के लिए, same organism के लिए different names use किए जाएंगे. For example, common name of onion in Urdu is प्याज.
but in different regions of the Pakistan it is also known as ganda और basil और vessel. So students basically जो onion है एक single organism है, उसको उर्दू में हम प्याज कहते हैं, but अगर हम इसको different regions of पाकिस्तान में देखें तो कोई इसको पंजाबी में गंडा कहते हैं, कोई और languages में किसी और country में इसको क्या यूज़ किया जाएगा, कोई और set of name इसके लिए यूज़ किए जाएंगे, और languages में इसको basil और vessel भी कहते हैं. So it means कि है तो single same organism but उसके different names हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये problem cause कर रहे हैं. So in other countries it has other sets of name. In science it is known with a single name as एलियम सीपा, बट साइंस में हम उसको सिंगल नेम से रिकग्नाइज करते हैं, उसका एक साइंटिफिक नेम है और वो क्या है, एलियम सीपा है. सो इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम नेम, सेम कॉमन नेम. फॉर एग्जांपल अभी तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स होते हैं, बट बाजुकात ये भी होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सेम नेम से रिकग्नाइज किया जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल द नेम ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन. अभी जो ब्लैक बर्ड वर्ड है ये क्या करते हैं, ये हम क्रो के लिए भी यूज करते हैं, ये रेवन के लिए भी यूज करते हैं. बट स्टूडेंट्स ये क्रो और रेवन जो बर्ड हैं ये टू सम एक्सटेंट, टू लार्ज एक्सटेंट क्या है, ये सेम है, बट इनमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है, इनकी स्पीशीज डिफरेंट है. रेवन का साइज जो होता है वो बिग होता है एज कंपेयर टू दी क्रो. सो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इनको क्या देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. नाउ वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो कॉमन नेम है वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं, अब उसी को हमने कंटिन्यू करना है. लाइक कॉमन नेम्स हैव no scientific basis. For example, a fish is a vertebrate animal with fins and gills. So students अगर हम fish की definition देखें तो fish क्या है, vertebrate animal है. It means कि इसमें backbone present होती है, इसमें fins होते हैं जो कि इसको swimming में help करते हैं, gills होते हैं जो कि इसको respiration और gases exchange करने में क्या करते हैं, help out करते हैं. But several common names of silverfish, crayfish, jellyfish and starfish do not fit the biologist's definition of a fish. अब बहुत से कॉमन नेम है लाइक जेली फिश है, क्रे फिश है, सिल्वर फिश है, स्टार फिश है. अब इनमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड फिश का वर्ड यूज कर रहे हैं इन कॉमन नेम्स में. सो स्टूडेंट्स बट बायोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है फिश की वो इससे सेपरेट है. इट मीन्स कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें बैकबोन नहीं होती, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें फिन्स नहीं होते. So students, to avoid all these confusion, organisms are giving scientific names by using binomial nomenclature. अब इस confusion को दूर करने के लिए organisms को क्या दिए हैं, scientific names दिए हैं. As you can see in the pictures of these animals, आप easily observe कर सकते हो कि इनमें बहुत difference होता है. Like students ये fish है, अब fish में आप observe करो कि इसमें fins होते हैं, फिन्स जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी है जस्ट लाइक द बोट. जैसे बोट की आगे से पॉइंटेड होती है बॉडी, जस्ट उसकी जो बॉडी है इससे रिजेंबल करती है, फिश से रिजेंबल करती है जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प आउट करती है. अगर हम इसका कंपैरिजन करें सिल्वर फिश के साथ तो सिल्वर फिश इनवर्टिब्रेट है, इसमें बैकबोन नहीं होती. देन ये जो सिल्वर फिश है ये क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है. देन अगर हम जेली फिश को देखें तो जेली फिश भी इनवर्टिब्रेट है, इनमें भी बैकबोन नहीं होती. देन अगर हम क्रे फिश को देखें, क्रे फिश आर्थ्रोपोड होते हैं, इनमें ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं और इनमें एक्सोस्केलेटन होता है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. अब क्रे फिश और जो आपकी एक्चुअल फिश है उसमें डिफरेंस होता है. क्रे फिश इनवर्टिब्रेट है जबकि जो दूसरी हमने फिश ऑब्जर्व की है जो कि बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फिश हम कंसिडर करते हैं उसमें बैकबोन होती है. देन स्टार फिश को आप देख सकते हो कि स्टार फिश की भी जो इसकी आप ऑब्जर्व कर रहे हो बॉडी वो डिफरेंट है फिश से. इट मीन्स के ये भी इनवर्टिब्रेट है, इसमें भी बैकबोन एब्सेंट होती है. सो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम्स. In binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified by just 2 words. It means कि आप binomial nomenclature system के through हर species को just 2 words से recognize कर सकते हो without any doubt. Same name can be used all over the world in all languages, avoiding difficulties of translation. अब ये जो word है
साइंटिफिक नेम्स हैं, हम ये तमाम लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, ये सारी डिफिकल्टीज जो हैं ये हमें रिमूव कर देते हैं रिगार्डिंग द कॉमन नेम्स. ये है इंपॉर्टेंस बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर की. ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स organisms are named in honor of the research workers who described and classified them. So students, basically बहुत दफ़ा हम जो है organisms को जो scientific name देते हैं वो बेसिकली जो उनको डिस्कवर करता है, डिस्क्राइब करता है, उस ऑनर पे जिस वर्कर ने उसको डिस्क्राइब किया होता है उसके नेम के अकॉर्डिंग उसको नेम देते हैं साइंटिफिक. लाइक फॉर एग्जांपल, द ऑर्चिड ट्री was named as Bauhinia variegata after the Swiss botanist Bohin. So it means के अब ये जो ऑर्चिड ट्री है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? Bauhinia variegata. अब इसको किस साइंटिस्ट के नेम के ऑनर में इसको नेम दिया है जिसने इसको स्टडी किया था? लाइक स्विस बॉटनिस्ट ने बोहिन के नेम पे इसको हमने नेम क्या दिया है? Bauhinia variegata. बेसिकली Bauhinia variegata ये ऑर्नामेंटल ट्री है जो कि डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए क्या होता है? यूटिलाइज किया जाता है, फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया. सो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करें साइंटिफिक नेम्स की, लाइक अनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सीप है. कॉमन सी स्टार जो स्टार फिश है उसका साइंटिफिक नेम एस्ट्रियस रूबेंस है. हाउस क्रो का साइंटिफिक नेम क्या है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट्स, अगर इसका आप मीनिंग देखें, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग देखें तो देन इसका मीनिंग क्या है कि मीन्स के वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, वो हमने डिस्कस करना है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों रिक्वायर्ड है, वैसे क्या रीजन है जो हम कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सेव करना है, वो हमने डिस्कस करनी है. लाइक during the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed. In the modern era, due to human actions, species and ecosystems are threatened with destruction to an extent rarely seen in Earth history. अब वो कहने कि जो loss of biodiversity है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है लास्ट सेंचुरी से. वो क्यों इंक्रीज हो रही है? बेसिकली जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं, अगर आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो या फिर आप ट्रीज रिमूव कर रहे हो, डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, या फिर आप इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसे चेंजेस कर रहे हो जिससे आज जो इन्वायरमेंट में स्पीशीज हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के चांसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो अ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम. इट मीन्स के अगर कोई स्पीशी इकोसिस्टम में से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, उसकी कोई भी स्पीशी वहां पे नहीं बाकी रहती, तो ऐसी स्पीशी को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं उस इकोसिस्टम में. सो व्हेन स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट, the stability of ecosystem is harmed. Biologists warn the global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. अगर in case ये आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ही रिड्यूस होते गए आपके इकोसिस्टम में, तो आपका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स, हम लेटर ऑन इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वो हम लेटर ऑन अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे. Now we will discuss the extinct and endangered species in detail. So firstly we will discuss the extinct species. What are extinct species? So students, in an ecosystem a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem. It means के एक ecosystem में एक species extinct तब consider की जाती है जब उस species का कोई भी organism वहाँ पे left ना हो. It means कि अगर हम इसकी example को discuss करें तो इसकी two examples हैं, like डायनासोर्स एंड वुली मैमथ. बेसिकली जो डायनासोर्स एंड वुली मैमथ है ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स है, इनकी कोई सिंगल स्पीशी अब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है. सो स्टूडेंट्स, ये जो डायनासोर्स एंड वुली मैमथ हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये डायनासोर्स हैं. बेसिकली डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हुए हैं? जब एक ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं रहता तो देन वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? एक्सटिंक्ट कर जाता है. सेम थिंग हैपेंड टू द डायनासोर्स.
सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट वुली मैमथ? बेसिकली एंशियंट टाइम्स में जब कोल्ड एरियाज थे, कोल्ड रीजन्स थे, तो देन ये वुली मैमथ उन एरियाज में सर्वाइव करते थे. इट मीन्स के आप पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी बॉडी पे लॉन्ग हेयर प्रेजेंट है, जो कि इनको ये कोल्ड इन्वायरमेंट से क्या करते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, इंसुलेट करते थे इनकी बॉडी में. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते गए तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते गए, ये एक्सटिंक्ट होते गए. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द endangered species. What are endangered species? So students, basically a species is called endangered when it is at risk of extinction in near future. It means कि अगर एक species को ये खतरा है कि वो नियर फ्यूचर में क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो देन हम उसको क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं. लाइक अगर इंडेंजर्ड स्पीशीज की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करें, इंडस डॉल्फिन है और हुबारा बस्टर्ड है, ये उसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं. लाइक इंडस डॉल्फिन एंड हुबारा बस्टर्ड. सो स्टूडेंट्स, ये इंडस डॉल्फिन भी पोल्यूशन की थ्रू, इट मीन्स कि इसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं. ये जो वाटर में पोल्यूशन हो जाती है उसकी वजह से ये जो स्पीशी है ये इंडेंजर्ड है. देन ये जो हुबारा बस्टर्ड है ये बेसिकली बर्ड है जो कि यूजुअली ड्राई इन्वायरमेंट में रहता है, इसके भी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज. Now students, we will discuss the extinct and endangered species. So students, many plant and animal species have gone extinct in Pakistan. Mostly जो animal और plant species है वो पाकिस्तान में extinct हो गई हैं. Then हमने examples discuss करनी है endangered and extinct species की. So students, ये जो lion है basically lion है endangered species in other countries, but in Pakistan ये extinct है. Then what about tiger? टाइगर भी दूसरी कंट्रीज में क्या है, इंडेंजर्ड है, और पाकिस्तान में ये एक्सटिंक्ट है. इसकी सिंगल स्पीशी भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती. सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट एशियाटिक चीता? एशियाटिक चीता जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है और दूसरी कंट्रीज में, बट इन पाकिस्तान ये एक्सटिंक्ट है, इसकी सिंगल स्पीशी नेटिव नहीं है पाकिस्तान में. देन व्हाट अबाउट इंडियन वाइल्ड एस? इंडियन वाइल्ड एस भी दूसरी कंट्रीज में क्या इंडेंजर्ड है बट पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट है. इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस ये भी इंडेंजर्ड स्पीशी है इन इंडिया दूसरी कंट्रीज में, बट इन पाकिस्तान ये एक्सटिंक्ट है. देन व्हाट अबाउट स्वैम्प डियर? स्वैम्प डियर भी पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो गए हैं बट अदर कंट्रीज में ये इंडेंजर्ड है. देन व्हाट अबाउट ब्लैक बग? ब्लैक बग पाकिस्तान में जो है इनकी स्पीशीज वो क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई हैं और अदर कंट्रीज में इंडेंजर्ड है. हंगूल भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है. इट मीन्स कि जो हंगूल है ये मेल डियर होता है और ये बेसिकली पाकिस्तान में ये प्रेजेंट नहीं होता और दूसरी कंट्रीज में क्या ये इंडेंजर्ड है. अगर मोस्टली हम ये देखें तो पाकिस्तान में तमाम स्पीशीज क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं. ये एग्जांपल्स हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज की इन पाकिस्तान. Impact of human beings on biodiversity. Now we will discuss the influence of human beings on biodiversity के human beings का biodiversity के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो किस तरह biodiversity को destroy करें, वो हमने discuss करना है. So students, by 10,000 years ago there were about 5 million people on earth. With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. अब 10,000 years ago अब अर्थ पे जो पॉपुलेशन थी पीपल की वो जस्ट 5 मिलियन थी, लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में और क्या होती गई, एडवांसमेंट होती गई, उन्होंने ग्रो किया. मीन्स के जैसे जैसे आपके जो फूड सोर्सेज थे वो इंक्रीज होते गए तो देन पॉपुलेशन क्या हुई, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई. टुडे अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ. अब देखें 10,000 years ago ये 5 मिलियन थे, लेकिन अब जो है ये 600 मिलियन हो गए. इट मीन्स के जैसे जैसे आप डेवलप होते जा रहे हो, अपनी कंट्री को डेवलप करते जा रहे हो, मोर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते जा रहे हो, तो देन ये क्या करती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है. टू इम्प्रूव the living conditions for 600 million humans, we are imposing serious threat to the survival of biodiversity. अब ये जो 600 मिलियन लोग हैं
इनको आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। अब इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को, ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनकी सर्वाइवल को थ्रेट है, उनको खतरा है, अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे ऐसे इन्वायरमेंट में। व्हाई इज दैट, वो हमने डिस्कस करनी है कि वो ऐसे क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से स्पीशीज क्या कर रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही हैं। लाइक वो फर्स्ट कॉज है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस होने से भी क्या कर रही है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इट मीन्स कि वुड कटिंग करते हो, देन जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज के ऊपर मोस्टली एनिमल्स रहते हैं, तो देन अगर आप ट्रीज को कट कर दोगे तो उनका क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन से आप ट्रीज की कटिंग करते हो तो डेफिनेटली ये हैबिटेट लॉस होने के चांसेस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ओवर हंटिंग करते हो आप अपने फूड ऑब्टेन करने के लिए, तो देन ओवर हंटिंग से अगर आप एक ही एनिमल को बार बार उसके ऊपर हंटिंग करोगे तो क्या हो गया, एट द एंड उसकी स्पीशीज क्या हो जाएंगी, इंडेंजर्ड हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, आप जो स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाते हो एनवायरनमेंट में, या फिर अगर कोई स्पीशी रिमूव हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ता है। देन अगर आप डिफोरेस्टेशन करते हो तो इससे पोल्यूशन होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो क्लाइमेट चेंज भी आते हैं। क्लाइमेट चेंज मीन्स के जो रेनफॉल का पैटर्न है, इट मीन्स कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या कॉज कर रही हैं, ये मेजर कॉजेज हैं स्पीशीज एक्सटिंक्शन के। नाउ स्टूडेंट्स, more than 2,60,000 people are added to the world population each day or more than 180 each minute. It means कि आपकी जो population है, world population, वो day by day increase हो रही है। It means कि 2,60,000 people एक दिन में आपकी population जो world की है उसमें add हो रहे हैं। और अगर हम इसके मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो more than 180 जो इंडिविजुअल हैं वो हर मिनट आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें क्या हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हैबिटेट लॉस इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। अब ये जो हैबिटेट लॉस होना है ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। सो स्टूडेंट्स, यूकलिप्टस प्लांट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल level of the groundwater. It harms other small plants that grow near eucalyptus trees. अब जैसे कि हमने पहले बताया कि जो इंट्रोडक्शन है या रिमूवल ऑफ स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करती हैं, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती हैं। वो कैसे करती हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। लाइक यूकलिप्टस ट्री जो है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं पाकिस्तान में। अब यूकलिप्टस ट्री की ये क्वालिटी होती है, इसका करेक्टर होता है कि बहुत ज्यादा वाटर को कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब इसके जो रूट्स हैं, अब वो जो ग्राउंड वाटर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो वहां पे क्या हो जाएगी, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो इसके जो सराउंडिंग में प्लांट्स होंगे वहां पे ग्रो करेंगे तो वो यूकलिप्टस ट्रीज की वजह से क्या होंगे, वो प्लांट्स क्या होंगे, उनको हार्म होगा, उनको नुकसान होगा। सो हम इस वजह से कहते हैं कि जो स्पीशीज हैं इंपोर्ट करने से, किसी इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाने से दूसरी जो स्पीशीज हैं वो इफेक्ट होती हैं। देन अगर हम इसका चार्ट को डिस्कस करें कि हंटिंग, स्पीशीज इंट्रोडक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और अदर्स जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पीशीज एक्सटिंक्शन में, वो हमने डिस्कस करना है। लाइक अगर हंटिंग को हम डिस्कस करें तो हंटिंग जो है वो 23% जो है आपकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के चांसेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। देन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करने से 39% आपकी स्पीशीज का लॉस होने के चांसेस होते हैं जो कि हाई हैं एज कंपेयर टू दी अदर। देन अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखें कि हैबिटेट लॉस होने से आपकी स्पीशीज खत्म होने के चांसेस कितने होते हैं, 36% होते हैं, और अदर्स जो होते हैं वो 2% होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियसली लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि किसी इन्वायरमेंट में स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करने से वहाँ पे सराउंडिंग में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इफेक्ट होती है। लाइक यूकलिप्टस ट्री को अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं इन्वायरमेंट में तो देन वो सराउंडिंग में जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है, उनको थ्रेट होता है उनकी सर्वाइवल को। अब हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हम किसी इन्वायरमेंट में से स्पीशीज को रिमूव कर दें तो देन व्हाट विल हैपन। सो स्टूडेंट्स, sea starfish eats mussels.
अभी जो स्टार फिश होती है ये मसल्स के ऊपर फीड करती है जो कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं. इफ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, अगर हम सी स्टार को रिमूव कर दें ओशन में से, देन व्हाट विल हैपन, मसल्स रैपिडली इंक्रीज इन नंबर. डेफिनेटली अगर आप वहां से स्टार फिश को रिमूव करें तो मसल्स का नंबर क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई फीड नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स, देन जब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अब जो मसल्स हैं वो स्मॉल एनिमल्स के ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो देन जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी सर्वाइवल को थ्रेट होगा एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द binomial nomenclature, rules and significance of binomial nomenclature. Then we have discussed the extinct and endangered species. Then at the end we have discussed the impacts of human beings on biodiversity. Now students, at the end we will discuss the MCQs from today's lecture. आपको MCQs किस फॉर्म में आ सकते हैं, like students आपको MCQs इस फॉर्म में आ सकते हैं. More than 2,60,000 people are added to the world population each day or more than each minute. Options हैं A option 160, B option 170, C option 180 or D option 190. So the correct answer of this MCQ is C option 180. It means कि जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, अगर उसमें हम ये एस्टिमेट लगाएं कि कितने इंडिविजुअल एक मिनट में ऐड हो रहे हैं, तो वो 180 हैं. Now students, we will discuss the second MCQs from today's lecture. आपको second MCQs किस फॉर्म में आ सकता है, like habitat destruction contributes in imposing serious threat to the survival of biodiversity. Options हैं A option 36%, B option 37%, C option 38% or D option 39%. So the correct answer of this MCQ is A option 36%. इट मीन्स कि जो हैबिटेट लॉस हो जाना है वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन के चांसेस में कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 36% कर रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, एट द एंड वी विल डिस्कस द थर्ड MCQ फ्रॉम टुडेज लेक्चर. सो द थर्ड MCQ इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज. ऑप्शंस आर A option Allium cepa, B option Astreus rubens, C option Corvus splendens और D option Canis lupus. So onion का जो scientific name है वो है A option Allium cepa. So students, basically अब ये जो Astreus rubens है ये starfish का scientific name है, Corvus splendens crow का scientific name है, then Canis lupus जो है ये wolf का scientific name है. So students, आपको इस फॉर्म में MCQs आ सकते हैं. Now we will discuss the short questions answers from today's lecture. आपको short questions किस फॉर्म में आ सकते हैं students, like differentiate between extinct and endangered species. So इनका difference क्या है? Extinct species in an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species had died in ecosystem. और endangered species में क्या, species is called endangered when it is at risk of extinction in near future. So students, अगर इनकी हम examples देखें extinct species की, examples क्या हैं, like dinosaurs हैं, woolly mammoth हैं, और endangered species की क्या examples हैं, Indus dolphin and Hubara bustard. Now we will discuss the second short questions from today's lecture. सो स्टूडेंट्स, आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. अभी रूल्स के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड while suggesting and documenting scientific names are, scientific names are usually printed in italics such as Homo sapiens when handwritten, they are underlined. Second rule क्या है, the first term always begin with capital letter while species name is never capitalized. So third rule क्या है, the scientific name is generally written in full when it is first used, but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for genus. For example, Escherichia coli becomes E. coli. So इस फॉर्म में आपको short questions आ सकते हैं. Now students, at the end we will discuss the long questions from today's lecture, like explain binomial nomenclature in detail. So students, आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं.